Hello everyone, my name is Ankit Nanwal. In earlier lectures, we have discussed about the ILD for point loading, ILD for shear force when we are drawing ILD for bending moment, and how to calculate the maximum shear force, how to calculate the maximum bending moment. So we have discussed about the point loading, we have discussed about the UDL loading, and there may be the case of series of point load. So for that, what you will do, so write down the note that if more than 2 point loads are moving on the beam, so then what you will be doing, then to get the maximum bending moment at C, suppose we will be taking an example of a simply supported beam. I will be explaining you this note with the help of an example with a numerical. Okay, keep the load such that the average load on one span should be equal to the average load on the other span. So this is the rule, or you can say that when you are dealing with the point loads, if there are more than 2 point loads moving on the beam, so you will be using the formula that average load on one span of the beam should be equal to the average load on the other span. Okay, so this is the numerical that has been given, that 4-wheel loads 3 kilonewton, 4 kilonewton, 5 kilonewton loads and 6 kilonewtons load spaced at 2 meter, 3 meter, 3 meter apart. Okay, so you can see these are the point loading, this load, this load, this load and this load. These are the 4-point load. Okay, so these are acting at 2 meter, 3 meter and 3 meter apart. Okay, so this is 3 kilonewton, this is 4 kilonewton, this is 5 kilonewton and this is 6 kilonewton. So this is the condition when this type of load is moving on the simply supported beam. So span of the beam is 24 meter with 3 kilonewton load leading from the left to the right. So this load will be leading. Okay, so we have made this opposite, but this will be leading. Okay, from left to right. Okay, so this will be moving in the beam from left to right. To find maximum bending moment at 18 meter from left support, the load that must be placed at the section is, so we need to find out that which load we have to place to find the maximum bending moment. Okay, so at that section which load will be there. So for finding that, now you have the condition that you have the beam span. So first of all, you have this beam. Okay, तो ये बीम है आपके पास. अब बीम की स्पैन देखिए कितनी है, स्पैन है 24 मीटर. अब 24 मीटर स्पैन है, बट सेक्शन जो उन्होंने बोला है, तो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम बॉन्डिंग मोमेंट एट 18 मीटर. सो 18 मीटर्स पे आपको एक सेक्शन कट करना है, देन इट विल बी 18 मीटर एंड दिस विल बी 6 मीटर्स. सो ये सेक्शन पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना. अब इस पे ये लोडिंग मूव करेगी, दैट इट विल बी 3 किलो न्यूटन विल बी लीडिंग. सो 3 किलो न्यूटन, then it will be 4 kilonewton, then it will be 5 kilonewton, then it will be 6 kilonewton. So now for that you need to see, the rule is average load on one span. So this is A, this is B and this is C. So now average load on this span should be equal to average load on this span. So for that what you will do, you will need to check for the average loading. So first of all, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर मैं चेक करूंगा, सो आप एक छोटा सा टेबल बनाएंगे. छोटे से टेबल बनाने के लिए देखिए मैंने क्या किया, जब आपको ये लोड है, व्हेन लोड्स आर ऑन एसी, जब सारे लोड एसी में होंगे, एसी में होंगे मीन्स जो ये स्पैन है हमारी, दैट इज दिस स्पैन. सो ए टू सी में ये सारे लोडिंग आ जाएगी, बिकॉज द स्पैन बिटवीन दिस लोडिंग इज 2 + 3 + 3, दैट इज 6 + 2 8 मीटर्स. सो 8 मीटर्स ये जो ये लोडिंग है वो टोटल 4 लोडिंग जब एसी स्पैन में होगी, तो एवरेज लोड ऑन एसी क्या हो जाएगा, एवरेज लोड ऑन एसी विल बी 6 + 5 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द एसी. And this will be coming out to be how much, 6 + 5 + 4, that is
18/18, that is equal to 1. Okay, and average load on BC, there will be no load on BC, so average load is 0 there. So 1 is greater than 0. Okay, now अदर कंडीशन क्या होगी, जब एक लोड C पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा. अब क्या हुआ, जब 3 किलो न्यूटन लीड कर रहा है तो पहले क्या होगा, 3 किलो न्यूटन लोड क्रॉस करेगा C पॉइंट को. तो C पॉइंट को जैसे ही 3 किलो न्यूटन लोड क्रॉस कर जाएगा तो एवरेज लोड जो होगा AC में वो क्या होगा, 6 + 5 + 4 डिवाइडेड बाई 18 एंड दैट विल बी 15 डिवाइडेड बाई 18. और अदर स्पैन BC में अब क्या हुआ, 3 किलो न्यूटन लोड पहुंच चुका है, तो वहाँ पे स्पैन में एवरेज लोड क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 6. अभी भी क्या कंडीशन है कि ये जो हमारा एवरेज लोड है AC पे वो ग्रेटर है इससे. ओके, अब क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन में एक और लोड जो है वो अब C पॉइंट को क्रॉस करेगा. ठीक है, अब वो कौन सा है, 3 के बाद कौन सा लोड आएगा, 4 किलो न्यूटन. अब 4 किलो न्यूटन जैसे ही क्रॉस करेगा, देखिए व्हेन 4 किलो न्यूटन लोड क्रॉसेस पॉइंट C, तो एवरेज लोड ऑन AC कितना हो जाएगा, 6 + 5 डिवाइडेड बाई 18, दैट इज 11/18. ओके, एंड अदर स्पैन BC पे क्या होगा, 4 + 3 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग आ गया. तो अब ये वाला क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया. सो AC पे अब लेस देन हो गया एवरेज लोड. तो अगर ये लेस हो गया इस स्पैन में और ये ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पे हमारे कंडीशन हमें क्या चेक करना है कि जैसा ही हमारा 4 किलो न्यूटन C पॉइंट पे आता है उस समय हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, क्योंकि हमारा नोट क्या कहता है, द एवरेज लोड ऑन AC मस्ट बी इक्वल टू एवरेज लोड ऑन BC. तो जैसे ही हमने कहा वो क्रॉस कर गया तो BC क्या हो रहा है, ग्रेटर हो जा रहा है एवरेज लोड. तो इसका मतलब वो क्या, या तो C पॉइंट पे है, या तो अगर वो इससे पहले की बात करें, जब वो इससे पहले था तो वो लेस आ रहा था, मतलब वो C पॉइंट पे क्या है, हमारा 4 किलो न्यूटन लोड है, जिससे हमारा एवरेज लोड ऑन AC इक्वल हो जाएगा BC की. तो अगर ये कंडीशन आपको समझ में आ गई तो C पॉइंट पे क्या करेंगे, हम 4 किलो न्यूटन लोड को अप्लाई कर देंगे. तो ये स्पैन है आपकी. अब यहाँ पे A हमारा हो गया 18 मीटर, B हो गया 6 मीटर. अब आपको सिंपल ILD बनाना है कि बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है. तो बेंडिंग मोमेंट ऑफ ILD क्या होगा, कैसे बनाते हैं, अगर C पॉइंट पे बनाना है, C पॉइंट में A और B मालूम है, तो कितना रेज करना है यहाँ से, AB/L, दैट इज इक्वल टू AB/L. A की वैल्यू 18 है, B की 6 है, और टोटल लेंथ कितनी है, 24 है. तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.5. ठीक है, अब AB/L आपने किया तो ये 4.5 आ गया. ओके, तो यहाँ से हमारा आप ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं. यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कि ILD में इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है. सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के ये वैल्यूज आ जाएंगी तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे. यहाँ पे से कंक्लूजन क्या मिलता है, व्हेन 4 किलो न्यूटन लोड क्रॉसेस C, एवरेज लोड ऑन AC विल बी लेस देन एवरेज लोड ऑन BC. सो कीप 4 किलो न्यूटन लोड एट C टू गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट C. तो इसलिए हमने क्या किया, उस C पॉइंट पे क्या किया, हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लाने के लिए उस लोड को वहाँ पर प्रोवाइड किया. तो हम AB/L की वैल्यू आ गई 4.5. तो 6 मीटर्स के लिए अगर ये 4.5 मीटर रेज हो रहा है तो 4 मीटर्स के लिए कितना होगा, ऐसे करके यूनिटरी मेथड से आप सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे ILD के. और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है, सिंपल लोड इनटू ILD कोऑर्डिनेट, लोड इनटू ILD कोऑर्डिनेट, लोड इनटू ILD कोऑर्डिनेट, लोड इनटू ILD. और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी बेंडिंग मोमेंट. ओके, सो अदर केस की बात करते हैं. अगर हमको सेक्शन नहीं दिया हो कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना, उस केस में क्या होगा, नोट 5 देखिए. When a series of wheel loads are moving on a simply supported beam, then to get the maximum bending moment under a chosen wheel load, keep the load such that the chosen load and the resultant loads are at equal distance from the center. Then maximum bending moment occur under the chosen wheel load but not at center. तो देखिए इस स्टेटमेंट सबको समझ नहीं आई होगी, कैसे समझेंगे इसको, विद द हेल्प ऑफ हम एग्जांपल से समझेंगे. तो इसमें करना क्या है बेसिकली आपको,
यहाँ पे हमारे को जो भी न्यूमेरिकल अगर इस तरह से दिया है, इससे पहले न्यूमेरिकल में क्या था, आपको सेक्शन दिया गया था कि हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है 18 मीटर्स पे। यहाँ पे बोला गया था कि हमने यहाँ पे 18 मीटर्स पे एक सेक्शन कट किया है, वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। बट अगर ऐसा केस ना हो, अगर सीरीज ऑफ व्हील लोड्स आपको दिया हो और उसको बोला हो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको एक ऐसा लोड चूज करना पड़ेगा कि हमको उसको ऐसे चूज करना है कि जो हमारा रिजल्टेंट लोडिंग होगी, रिजल्टेंट लोड क्या होगा, जो सीरीज ऑफ लोड है हमारा उसका रिजल्टेंट निकालेंगे पहले। तो जो रिजल्टेंट ऑफ लोड जहाँ पे लग रहा होगा, कहाँ पे लगेगा, सीजी पे लगेगा, तो उसका जो बीम का सेंटर है उससे हमारा रिजल्टेंट और वो चूजन लोड जो है क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। अभी भी आपको ये पूरा क्लियर नहीं होगा, ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कैसे। क्वेश्चन देखिए, बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, बेसिकली सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर्स में आते हैं, ये ईएस में भी आ सकता है ऐसा न्यूमेरिकल, 20 मार्क्स का आता है ज़्यादातर, ऐसे ये बड़ा न्यूमेरिकल होता है बिकॉज इसमें पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी होती है आपको। तो जैसे न्यूमेरिकल है 5 व्हील लोड्स 10 किलो न्यूटन, 22 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन, 16 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन, spaced equally at a distance of 5 meter, roll over a simply supported beam of span 80 मीटर। अब बीम की स्पैन 80 मीटर्स है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद 20 किलो न्यूटन लोड लीडिंग। अब क्या है, 20 किलो न्यूटन लोड जो है वो लीड करेगा, ठीक है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब हमारे को बताया नहीं है कि कहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, पर हमें उसकी पोजीशन भी बतानी है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी बताना है। विच में अकर एनीवेयर इन द बीम। अब यहाँ पर बोल दिया कहीं पे भी वो अकर कर सकता है। तो पहला इसमें हम नोट लिखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। इन दिस प्रॉब्लम देखिए क्या है, सेक्शन ऑफ द बीम इज नॉट स्पेसिफाइड। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पे हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है वो हमको गिवन नहीं है। सो वी हैव टू चूज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चूज करने के लिए मैंने आपको नोट लिखाया था कि नोट क्या है, यहाँ देखिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे अकर होगा, जहाँ पे रिजल्टेंट लोड इक्वल डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ द बीम से, और जिस लोड पे हम निकालेंगे वो भी इक्वी डिस्टेंस होगा उस पॉइंट से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स नियर दी सेंटर, सेंटर के नियर पे होगा। टू गेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर अ चूजन व्हील लोड। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए किस चूजन व्हील लोड, किसको हम चूज करेंगे, अभी चूज नहीं किया। द रिजल्टेंट लोड सिस्टम एंड द चूजन लोड मस्ट बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से रिजल्टेंट लोड और सेंटर से वो चूजन लोड जो है इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर करेगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब आपको ये देखिए लोडिंग सिस्टम दिया गया है, आपको बोला गया है ये 10 है, ये 12 है, 10 12 12 16 एंड 20, ठीक है। अब ये आपको 5 लोडिंग दी है। अब आपको रिजल्टेंट लोड निकालना है सबसे पहले। तो रिजल्टेंट लोड निकालने के लिए आपको वेरिग्नेंस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। वेरिग्नेंस थ्योरम क्या कहता है कि हमारा जो मोमेंट ऑफ द फोर्स है अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट समेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मतलब जो मोमेंट समेशन जो उसका रिजल्टेंट जो होगा, जो समेशन ऑफ द मोमेंट्स प्रोड्यूस करेगा वही इन डिफरेंट मोमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। वेरिग्नेंस थ्योरम ये आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बता चुके हैं। वेरिग्नेंस थ्योरम क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ समेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एट दैट पॉइंट। तो ये सारे क्या है, मोमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं, अदर फोर्सेज हैं। जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेगा किसी पॉइंट पे वो इसके समेशन के बराबर होगा। तो अगर हम वेरिग्नेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं, वेरिग्नेंस रिजल्टेंट लोड हमें निकालना है, ठीक है। रिजल्टेंट लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल लोड कितना है 10 + 12 + 12 + 16 + 20,
so how much it is 2 to 4, that is plus here 20 20 40 40 and 30 70, total is 70 किलो न्यूटन। सो रिजल्टेंट लोड आ गया हमारा 70 किलो न्यूटन। अब वेरिग्नेंस थ्योरम क्या कहता है, जितना ये रिजल्टेंट मोमेंट जो है तो दैट मीन्स 70 किलो न्यूटन कहीं पे ये एक्ट कर रहा है, मान लो यहाँ पर एक्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट, जहाँ पे जितना मोमेंट ये प्रोड्यूस करेगा विद दी सी जी इंटू एक्स बार, किसी एक पॉइंट से रिजल्टेंट लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, सी जी पे एक्ट करेगा स्पैन की। तो ये इसकी स्पैन है, ये यहाँ पे सी जी पे एक्ट कर रहा है इसके। तो उसके जो कंपोनेंट मोमेंट होंगे उसका समेशन करेंगे अगर, तो ये इसी के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स अगर हम पहला लोड निकालें तो अगर हमारा एक्स बार यहाँ से दूर है रिजल्टेंट तक तो 10 के लिए क्या होगा 10 इंटू 0, इस पॉइंट के लिए 10 जहाँ पे लोड लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0, ओके, प्लस 12 इंटू पहला डिस्टेंस कितना है ये न्यूमेरिक इसमें दिया गया होगा, दैट दे आर स्पेस्ड एट आर इक्वल एट अ डिस्टेंस ऑफ, इक्वली स्पेस्ड बताया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो 5 मीटर बताया गया है, ये सारे 5 मीटर दूरी पे हैं, ओके। तो पहला क्या आ जाएगा 12 इंटू 5, यहाँ से 12 5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, दूसरा 12 इंटू 10 5 प्लस 5, अब ये क्या हो गया इस वाले 12 के लिए 5 प्लस 5। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे इसमें तो क्या होगा 16 इंटू, अब क्या हो जाएगा डिस्टेंस 15, प्लस अगला क्या है 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू, अब ये कितना होगा टोटल डिस्टेंस 5 5 10 10 प्लस 10 20। सो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो यहाँ पे निकाला होगा देखिए हमने। तो रिजल्टेंट मोमेंट जो है, रिजल्टेंट मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट। तो ये सारे समेशन हो गए मोमेंट्स के, ओके। तो यही वेरिग्नेंस थ्योरम कहता है कि जो रिजल्टेंट मोमेंट प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी इक्वल टू ऑफ समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू आ गई, दैट योर रिजल्टेंट इज एक्टिंग एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम, ये वाले पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, जिस पॉइंट से हमने रिजल्टेंट मोमेंट का कैलकुलेशन किया, एक्स बार की डिस्टेंस जहाँ से निकाली। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई आपकी 11.71, ओके। सो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 11.71 मीटर्स। तो पहली कंडीशन तो हमने ये निकाल ली है। अब इसको हम चेक करते हैं, 11.71 आई है, मतलब ये कहाँ पे है 5 5 10 यहाँ पर कहीं ये एक्ट कर रही है। अब 10 हो गया तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 11.71 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 1.71, ठीक है 1.7। अब देखिए आगे की कंडीशन क्या है कि इन दिस प्रॉब्लम वी लोड इज नॉट चूजन, वी हैव टू चूज द वी लोड। अब ये भी नहीं बताया कि किस लोड पे मैक्सिमम लोड होगा, कौन सी लोडिंग पे, तो ये भी हमें चूज करना पड़ेगा कि चूज करना पड़ेगा इसमें। तो अंडर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में हैपन, किसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, इन दिस केस देर आर 12 किलो न्यूटन लोड इज नियरर टू द रिजल्टेंट बट greater load that is 16 किलो न्यूटन is slightly away from the resultant। अब देखिए हमने यहाँ पे केस बनाया है, जो इस केस में देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस देखिए 1.71 आया है, ये कितना है 1.71। तो रिजल्टेंट देखिए अगर हम दो लोडिंग की बात करें, रिजल्टेंट के आसपास कौन से लोड हैं 12 किलो न्यूटन और 16 किलो न्यूटन। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिलेगा, जहाँ जो लोड रिजल्टेंट के पास होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं कि या तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 12 किलो न्यूटन के पास मिलेगा या 16 किलो न्यूटन, इसके दोनों के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो पहले कंडीशन में जब हमने कहा कि रिजल्टेंट के पास 12 किलो न्यूटन है, तो उसके लिए हमारा ये वाला डिस्टेंस आ गया 1.71। तो यह हमारा चूजन लोड हो गया उस केस में,
चूजन लोड हमारा 12 किलो न्यूटन हो गया। तो अगर इसके लिए डिस्टेंस हमारा 1.71 है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे देखिए कि यहाँ पे 12 किलो न्यूटन लोड इज नियर टू द रिजल्टेंट, बट बिकॉज ये डिस्टेंस कितना हो गया 1.71, तो रिमेनिंग कितना हो गया 5 माइनस 1.71, दैट विल बी इक्वल टू 3.29। तो दिस डिस्टेंस इज 3.29। सो नियरर कौन सा है 12 वाला, बिकॉज इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.71। ठीक है, अब आगे सो वी हैव टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर 12 किलो न्यूटन लोड एंड 16। तो दोनों के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ा लोड है उसके नीचे भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ सकता है, पर उसका डिस्टेंस रिजल्टेंट से क्या है, दूर है। अब नियरर वाले पे भी आ सकता है बिकॉज वो रिजल्टेंट के पास है, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। इफ़ एट ऑल 16 किलो न्यूटन लोड इज नियर, अगर 16 किलो न्यूटन लोड रिजल्टेंट के पास होता तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको वहीं पे मिलता, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पे 16 किलो न्यूटन थोड़ा दूर है, पर वो लोड ज़्यादा है, इसलिए हमें वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी के लिए चेक करते हैं कि अगर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा अंडर 12 किलो न्यूटन लोड होगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारी ये स्पैन बनाई हमने ए से बी, टोटल स्पैन कितनी है 80 मीटर्स। ओके, ये डिस्टेंस जो है आपका कितना है 80 मीटर्स का है। अब अगर ये डिस्टेंस हमारा 80 मीटर्स हो गया, अब हमने इसका जो सेंटर है होगा बीम का कितना होगा, ये 40 पे होगा। ये बीम बनाई 80 की आई, ये सेंटर हो गया उसका, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये 40 होगा और ये 40 होगा। अब हमारी कंडीशन क्या थी देखिए, अब हमने पहला लोड चूज कर लिया दैट इज 12 किलो न्यूटन। अब हमारी कंडीशन जो हमने नोट पे लिखाई थी कि हमें क्या करना है कि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लाने के लिए चूजन व्हील लोड, टू गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर अ चूजन व्हील लोड, तो हमने अब चूजन लोड क्या हो गया 12 किलो न्यूटन हो गया। द रिजल्टेंट ऑफ लोड सिस्टम एंड द चूजन लोड मस्ट बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब इस डिस्टेंस से, ये सेंटर से रिजल्टेंट और वो लोड क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमने क्या किया, जो रिजल्टेंट है देखिए, अब रिजल्टेंट को हमने यहाँ पे रख दिया। रिजल्टेंट को हम अब लोडिंग को इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर होगा और जो हमारा लोड होगा चूजन लोड वो यहाँ पर होगा। तो ये पहले 12 किलो न्यूटन है, ओके, फिर 12 किलो न्यूटन, फिर 10 किलो न्यूटन। तो लोडिंग इस तरीके से ही है, और ये वाला हो गया 16 किलो न्यूटन और ये वाला हो गया, सॉरी ये हो गया रिजल्टेंट। अब यहाँ पर आएगा हमारा 16 किलो न्यूटन, इसको दूसरे कलर से हम शो करते हैं, तो ये रिजल्टेंट हो गया। ओके, सो ये रिजल्टेंट हो गया और ये हमारी लोडिंग हो गई 16 किलो न्यूटन और ये 20 किलो न्यूटन। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट सारे क्लियर हो। तो हमने क्या किया, जो रिजल्टेंट है और ये डिस्टेंस है, तो ये रिजल्टेंट से इसका डिस्टेंस कितना था, रिजल्टेंट से इसका डिस्टेंस हमारा था 1.71। तो हमको ये इस तरह से लगाना पड़ेगा कि ये जो सेंटर से होगा ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा 1.71 डिवाइडेड बाय 2 और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 1.71 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस स्पैन की जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे हमें इसके सेंटर पे ये लोडिंग फिक्स करनी पड़ेगी। तो हमने वही किया, जो हमारा ये डिस्टेंस था उसके हाफ पे हमने क्या कर दिया, सेंटर को बीम पे ये ऐसी लोडिंग कंडीशन अप्लाई कर दी। अब अगर हमने ये ऐसी लोडिंग अप्लाई कर दी तो ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है यहाँ से लेकर कितना है 40 है। अब ये 40 कहाँ से है, ये तो सेंटर से है। अब रिजल्टेंट का देखेंगे, अब हमने 12 किलो न्यूटन को चूज़ किया है, तो ये पॉइंट हमारा चूजन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये जो लोड है हमारा ये चूजन लोड हो गया। यहाँ पे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए ILD बनाएंगे। आप कितना बनाएंगे, कितना रेज करेंगे, AB बाय L। सेम प्रोसीजर है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, बस ये इम्पोर्टेंट था कि हमें लोडिंग कैसे फिक्स करने हैं।
तो हमने क्या किया यहाँ पे ए बी बाई एल इसको रेज कर दिया। अब आप ये बाकी डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हैं, ये 5 है, ये 5 है, तो रिमेनिंग कितना होगा सेंटर से यहाँ तक कितना है, दैट इज 40। तो 12 ये 40 माइनस 1.71 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये माइनस कर देंगे तो ये आ गया 39.14। तो रिमेनिंग बी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप सारे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेंगे और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि हमने 16 किलो न्यूटन को अब चूज कर लिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से अब लोडिंग बीम बनाइए। देखिए ये बीम है, अब हमने सेंटर ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये 40 डिस्टेंस है, ये भी 40 डिस्टेंस है। सेकंड पॉसिबिलिटी थी हमारा अब चूजन लोड जो है वो 16 किलो न्यूटन है, ठीक है। सो हमारा जो रिजल्टेंट था वो कहाँ पे था, समवेयर हमने यहाँ पे रखा था उसको, पहली कंडीशन में हमने उसको यहाँ पे रखा था। अब रिजल्टेंट से जो हमारी लोडिंग कंडीशन थी, पहले देखिए हम वो बना देते हैं। ये हमारी कंडीशन थी 10, 12, 12, 16 एंड 20। सो यहाँ पे हमारा कहीं पे रिजल्टेंट है, ये वाला डिस्टेंस था 1.71, ये वाला डिस्टेंस था 3.29। अब हमें इस डिस्टेंस के हाफ पे, अब हम 16 किलो न्यूटन की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम इसके हाफ पे सेंटर रखेंगे तो रिजल्टेंट और चूजन लोड का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या रखना है, इससे ये वाले डिस्टेंस पे सेंटर से इतने 3.29 डिवाइडेड बाई 2 पे जाके हमको 16 किलो न्यूटन लोड लगाना है। और कौन सा लोड है, रिजल्टेंट, इतने ही डिस्टेंस पे हमारा रिजल्टेंट होगा, दैट इज आर 3.29 डिवाइडेड बाई 2। अब दो कंडीशन, बाकी लोडिंग सेम रहेगी। उस हिसाब से आपको एक ILD बनाना है। अब ILD कहाँ पे रेस करेंगे, 16 किलो न्यूटन लोड होगा जहाँ पे, तो वहाँ पे कितना रेस करेंगे, AB बाई L। फिर सारे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे आप 5 लोडिंग के लिए, तो उनके लिए आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। इस तरह से आपको ये पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको सीरीज ऑफ पॉइंट लोडिंग के लिए कैसे कैलकुलेशन करनी है। टुडे second unit has been completed, so all the points has been discussed regarding ILD. So thank you very much.